Chaji, Assalamu alaikum all. This is our 20th session on the course and I think आज हम अपनी discussion को complete करेंगे on boundary conditions and we will look over the pointing vector and that will be the content for exam 2 खत्म हो जाएगा हमारा. Okay, so what I want to do today is I'm gonna look over. I will start with example 5.6 of your text. I think I like this example a lot. It clarifies a lot of concepts regarding boundary conditions and vectorial manipulation. So what this problem is about, let me draw a figure here and you can keep drawing with me, or if you have the book, you can open the book if you want. So let's draw the figure first, and I will explain you in a bit what do we mean by this figure. अच्छा, अगर in the meantime while I'm drawing it, अगर किसी के पास handy this 3D box अगर पड़ा हो, जैसे मैंने एक बिस्किट का बॉक्स ले लिया, अगर ये आपके पास है तो it would be nice to visualize this problem something like this, maybe you know medicine pack or something like that. अगर आपको handy है तो उसको पकड़ लें, ठीक है, while I'm drawing it so that things will become easier to understand. अच्छा जी, so I'm just drawing these axes, ठीक है, ये axes हो गए and I am gonna draw this basically ये जो 3D box मैंने आपको दिखाया है, I'm gonna draw that uh, uh, so this would be it, and let's call that as x. This is, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. This is y axis and this is z axis, ठीक है. This is, let's call this is x is equal to a, this is y is equal to b, this point, ठीक है, and this point x is equal to a, and these 2 points x is equal to 0, y is equal to 0, these 2 points, ठीक हो गया. और z axis is infinite. तो ये क्या मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, you see this is a waveguide, and if we find time in the end we will look over it in detail. लेकिन this is a waveguide. किस तरह की waveguide है, एक hollow box है, you know, ये पीछे से भी खुला है, let's say that, ठीक है. This is what I try to draw. इसके अंदर फ्री स्पेस है सारी, और ये सारी जो वॉल्स हैं ये मेटल की हैं, परफेक्ट मेटल कंडक्टर, ठीक है. So that's what our structure on which we are looking at, ठीक है, under free space and metallic structure around. So that's what I drew here, and let's call this one, इसके अंदर free space है तो epsilon naught mu naught अंदर इसका medium है. And what I know about this structure कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब ये क्या है, बेसिकली इट्स अ बॉक्स जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रेवल कर रही है, ठीक है. और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो फील्ड्स हैं वो ये हैं, ई एक्स और ई जी दोनों 0 हैं, एंड ई वाई जो है इट्स गिवन एज सी ओमेगा म्यू नॉट a over pi sine pi x over a and sine omega t minus beta z, ठीक है. And hx is equal to, this E means electric field and H means magnetic field. EY means the electric field is in the AY direction, and HX means that magnetic field is in the X direction. See, so I'm going to write these expressions. इसको लिख ले मेरे साथ, because then we're going to work over these expressions for boundary conditions. So a lot of concepts would be clarified here. Sine
omega t minus beta z, and 8y equals to 0, and 8z equals to c cos pi x over a, and cos omega t minus beta z. ठीक है. So the problem ये है कि this waveguide, this rectangular waveguide, which has a free space inside, or it's inside free space के अंदर, we know these electromagnetic fields exist, और ये उनकी expressions हैं. Our goal is, number one, जो हम नहीं करेंगे वो ये है कि in order to we need to show that these fields which I just wrote indeed satisfy Maxwell's equations. ठीक है, वो satisfy करते हैं, आप example में देख लेना. What I am more interested in knowing and in applying the boundary conditions, कि ये जो fields हैं ये boundary conditions को satisfy करते हैं. That's something I'm more interested, because so that we understand boundary conditions well after solving this problem. So as a reminder, you know the boundary conditions जो थी वो क्या थी. पहली boundary condition, that tangential E is continuous. Second, tangential H is discontinuous, and then the normal D is discontinuous, and the normal B is continuous. ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी. सो बेसिकली अब होगा ये कि वी वांट टू नो कि बाउंड्री कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं, और दूसरी ये परफेक्ट मेटल कंडक्टर्स हैं, लाइक all these has the this conductivity to be infinite. We also, which will also imply कि involves के ऊपर charge और current exist करेगा. अच्छा, when this happens, if we have metallic conductors, then we know that the electric field, everything would be zero on these walls. So let's start the problem. अब ये करते हैं, अपने आप को सेटअप इस तरह करते हैं कि इसको आई विल कॉल, क्योंकि ये क्यूब है, आप देख सकते हो उसकी 6 वॉल्स हैं, 1 2 नहीं 4, लेट्स से देयर वुड बी 4 हियर, 1 2 3 and 4. ठीक है, 1 2 3 and 4, बिकॉज ये तो हॉलो है, इधर वॉल को नहीं, 4 वॉल्स है. सो आई एम गोना लेबल दोस 4 वॉल्स, यानी ताकि मुझे आसानी हो कि मैं हर वॉल के ऊपर क्या फायर करूं. ये मेरी वॉल 1 है. ठीक है, दिस वन, this is wall 1, and I call this one as my wall 2, the other side, and let's call the top one as the wall 3, and the bottom one as the wall 4. ठीक है, ये नीचे जो bottom one wall 4. So ये मेरी 4 walls हैं जिसपे हमने boundary conditions देखनी है. और एक काम मैं ये करता हूँ, मैं अपने normals जो हैं वो ऐसे define करता हूँ, like on this wall the normal is this, on this wall is normal this is my normal, and this is my normal in all walls. और जो हमारा कन्वेंशन था जब हमने ये डिराइव की थी कंडीशंस, हमने कहा था हमारा नॉर्मल मीडियम 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है. तो मेरा जो फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, उसको मैं कहूंगा वो मेरा मीडियम 2 है, और जो मेरा मेटालिक कंडक्टर है, परफेक्ट मेटालिक, वो मेरा मीडियम 1 है. सो बड़े आराम से आई कैन सी दिस थिंग कि क्योंकि परफेक्ट मेटालिक कंडक्टर्स हैं, ये सारे फील्ड्स जो हैं E1 is 0, H1 is 0, D1 is 0, बिकॉज ये मेरे परफेक्ट मेटालिक कंडक्टर पे, और B1 is 0. ये अब मेरी बेसिकली इक्वेशंस हो गई हैं बाउंड्री कंडीशंस की जो मैंने अप्लाई करनी है. ठीक हो गया. अच्छा, अब मेरा फर्स्ट, लेट्स लुक ओवर द वॉल 1. अब ये फिगर आपके सामने है, मेरे ये छुप जाएगी फिगर, लेकिन आप लोगों के सामने होगी. सो लेट्स अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन ओवर द वॉल 1. वॉल 1 के ऊपर लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले, एंड सी कि हमारा वहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं फील्ड. वॉल 1 के ऊपर सबसे आसान चीज क्या है हमारी, सबसे पहले लगाएं कि हम क्या E T2
इज इक्वल टू ई टी वन इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। अच्छा, उसके लिए जानना जरूरी है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है कौन सा। सबसे पहले तो आप ये देखो, वॉल वन के ऊपर नॉर्मल किस डायरेक्शन के अंदर है। सो वॉल वन के अंदर नॉर्मल है ए एन इज इक्वल टू प्लस ए वाई, ये मेरा ए वाई प्लस ए वाई डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। सो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स कौन से इसके अंदर हो सकते हैं, एक्स एंड जी। सो वॉल वन के ऊपर क्या मेरा ई एक्स और ई जी जीरो है। लेट्स लुक ओवर द प्रिस्क्रिप्शन। यस, ई एक्स और ई जी दोनों जीरो हैं, वो वैसे ही जीरो है, तो वॉल वन के ऊपर वो टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक हो गया। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि इस वॉल के ऊपर मेरा बी एन टू इज इक्वल टू बी एन वन, वो भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या जीरो होना चाहिए, एच वाई मेरा जीरो होना चाहिए, क्योंकि बी क्या होता है, बी इज म्यू एच। सो जो नॉर्मल है बी, दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस ए वाई, और एच वाई बेसिकली जीरो होना चाहिए। तो मेरा एच वाई जीरो है जी, बिल्कुल मेरा एच वाई जीरो है। सो एच वाई इज जीरो, दैट्स गुड, ग्रेट। सो मेरे ये वाले दोनों आसान बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये तो जीरो हैं। अभी करंट और उसको हम निकालते हैं इन वॉल्स के ऊपर, करंट और चार्ज को, विल फिगर दैट आउट just in a bit, but let's see these conditions. अच्छा, अब वॉल थ्री के ऊपर भी देख लेते हैं। वॉल थ्री जो है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगी, क्योंकि उसके ऊपर, वॉल थ्री के ऊपर डिफरेंस कोई नहीं होगा। वॉल थ्री कौन, सॉरी वॉल टू, वॉल टू जो है वो ये है, यहां पर मेरा नॉर्मल इन द माइनस दिस वन, द नॉर्मल इज इन द माइनस ए वाई डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मल इज इन द माइनस ए वाई डायरेक्शन, उसके ऊपर भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स इस वॉल के भी वही हैं, वाई जी। सो एग्जैक्टली ई वाई ई एक्स ई जी एच वाई इधर जीरो होंगे, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है चीज। वॉल थ्री के ऊपर आते हैं। वॉल थ्री मेरी कौन सी है, ये वाली, दिस वन। वॉल थ्री के अंदर मेरा नॉर्मल किस डायरेक्शन के अंदर है, इट इज टुवर्ड्स माइनस ए एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो आई कैन राइट इट हेयर, नॉर्मल जो है माइनस ए एक्स डायरेक्शन है, और टेंजेंट है मेरे ए वाई और ए जी। अब ये मुझे देखना है, क्या मेरे वॉल थ्री के ऊपर ई वाई और ई जी जीरो हैं कि नहीं है। लेट्स सी दैट। सो वॉल थ्री के ऊपर ई जी तो वैसे ही जीरो है, तो जीरो है। तो ई वाई मेरा वॉल थ्री के ऊपर जीरो है कि नहीं है, किसी को कोई मुझे बताएगा, यहां पर रिस्पॉन्ड करेगा, whether EY is zero on wall 3 or not by looking over this expression. This one, can anybody tell me? Yes? No? अच्छा, ये देखो, वॉल थ्री जो है वो किसके ऊपर लाई करती है, ये पूरी जो वॉल थ्री है ये ऊपर वाली, this one. So it will be 0 Why it would be zero? because wall 3 is that x is equal to a and sine of pi into a over a will be 0. Yes, absolutely right. Absolutely right. Because wall 3 is, the whole wall is at x is equal to a. So x is equal to a, x को मैं a substitute करूंगा तो sin pi 0, तो wall 3 पे EY 0 है. So very good. मेरी जो है बाउंड्री कंडीशन वॉल 3 के ऊपर भी सेटिस्फाई करती है. एंड सेम विल बी ट्रू वॉल 3 के ऊपर जो मेरा एच एक्स है, क्योंकि बी वॉल थ्री के ऊपर भी मैंने देखना है बी एन टू इज इक्वल टू बी एन वन इज इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स एच एंड एच जो नॉर्मल है इसमें एक्स डायरेक्शन में है, तो एच एक्स जो है मेरा वो जीरो होना चाहिए। तो मेरा जीरो है कि नहीं है एच एक्स, सेम यू कैन सी दिस थिंग दैट एच एक्स पे एक्स को मैं जब ए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा एच एक्स भी जीरो है। तो मेरा ये कंडीशन भी ठीक है, बिल्कुल मेरी सेटिस्फाई होती है। और अब आप देख सकते हो, जब मैं वॉल फोर के ऊपर जाऊंगा, वॉल फोर के ऊपर जाऊंगा, वो क्या होगा, उधर मेरा नॉर्मल इज इन द पॉजिटिव ए एक्स डायरेक्शन, तो एग्जैक्टली सेम चीज होगी, ए एन इज इक्वल टू पॉजिटिव ए एक्स। लेकिन
जो वॉल 4 है ये लाई करती है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सो आप x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके वो सारे फील्ड 0 हो जाएंगे। तो ये बाउंड्री कंडीशंस जो चारों वॉल के ऊपर टेंजेंशियल E और नॉर्मल B की बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल ये है, क्या इन वॉल्स के ऊपर अगर मैंने निकालना है what will be my current on these walls, what would will be my charge density on these walls? So let's figure that out. So let's say मैं वॉल 1 के ऊपर जाता हूँ, वॉल 1 के ऊपर वापस जाता हूँ एंड आई ट्राई टू फिगर आउट जे एस एंड रो एस। ये वॉल 1 जो है, वॉल 1 का मेरा, this is my wall 1, normal AY और टेंजेंशियल AX AZ। सो मुझे पता है वॉल 1 के ऊपर आई हैव टू सेटिस्फाई AN क्रॉस H 2 इज इक्वल टू JS। ये मेरा वॉल 1 के ऊपर बाउंड्री कंडीशन है, और वॉल 1 के ऊपर AN क्या है, प्लस AY। ठीक है, सो जब मैं ये करूंगा AY क्रॉस H पूरा, H के यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, जो H है, H जो है वो Y नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को आसान करने के लिए एच एक्स ए एक्स प्लस एच जी ए जी, यानी कि ये वो ही है जो ऊपर मैंने लिखी हुई है एक्सप्रेशंस। ठीक है, एंड ये और ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक काम मुझे और करना पड़ेगा यहां पर, वो ये कि ये एच एक्स जो है वो और एच जी जो है, ये वॉल 1 पे, वॉल 1 मेरी क्या है, वॉल 1 मेरी क्या है, y इक्वल्स टू 0 के ऊपर लाई करती है। सो ये दोनों मेरी एवेल्युएट होंगी y इक्वल्स टू 0 के ऊपर, मैंने एवेल्युएट करनी है लेटर ऑन। सो वो मैं कर लूंगा, लेकिन आई कैन फिगर आउट वेरी क्विकली ए वाई क्रॉस ए एक्स क्या होगा मेरा, एक्स वाई जी। सो y क्रॉस x would make it minus hx at y equals to 0 in the az direction, plus y cross z is 8z evaluated at y is equal to 0 in the ax direction। ये मेरा js होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली hx जो है ये वाला, y is equal, यहाँ पे तो y है ही नहीं है कहीं पर, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगी, और hz में भी y है ही नहीं है, तो ये पूरी एक्सप्रेशन एज इट इज विद ए जी एंड ए एक्स डायरेक्शन के अंदर ये मेरा जे एस कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि टाइम वेरिंग जे एस और जे एक्स है। ठीक हो गया। एंड सिमिलरली वॉल 1 के ऊपर आई कैन इजीली फिगर आउट माई चार्ज 2। चार्ज क्या होगा, ए एन डॉट डी 2 इज इक्वल टू रो एस। ए एन मेरा क्या है, ए एन मेरा वाई डायरेक्शन में है, ए वाई, और डी टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई टू इज इक्वल टू रो एस। सो ये मुझे देखना है ई टू का वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, ऊपर चल के देखते हैं, क्योंकि यस वाई। सो बेसिकली क्या होगा, दिस वन, this becomes my at wall 1 at y is equal to 0, मेरा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, रो s is equal to epsilon नॉट, वो ई वाई evaluated at y equals to 0, ये मेरा चार्ज होगा। ठीक हो गया, समझ आ गया आपको? सो दैट्स एन नाइस प्रॉब्लम। इसी तरह बाकी सारी वॉल्स के ऊपर भी करंट और जो है यू कैन सी करंट और चार्ज कैसे निकलते हैं। सो दैट्स समथिंग यू शुड गो थ्रू दिस एग्जांपल in detail in your book। आपकी बुक ये प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन remember try to apply these expressions as I just did it for one wall, and you should be able to do it for everything। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक आई थिंक जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, ये करंट ये करंट जो है ओके
आई लेट मी एक्चुअली मैं ना आपको इसकी एनिमेशन दिखाता हूँ. आई फॉरगॉट टू पुल इट अप. ओके, but somehow I cannot do that right now. Never mind, next time मैं दिखा दूंगा. ठीक है. So basically the idea is this. The idea is this कि आपकी इस वेव गाइड के ऊपर ये जो आपका ये वेव गाइड है, ठीक है, इसके इस वॉल्स के ऊपर आपका टाइम वेरिंग करंट और चार्ज एग्जिस्ट करता है बाय विच फॉलोज दीज एक्सप्रेशंस. ठीक है. कोई सवाल किसी का इसके ऊपर बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? नो क्वेश्चंस, मेक सेंस? ठीक है. So I think that's all on the boundary conditions I want to say here, and I'm going to move to the last topic, small one, and wrap things up. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, जबरदस्त. सो याद रखिएगा बाउंड्री कंडीशंस की प्रॉब्लम्स इजियर होते हैं इफ यू फिगर आउट ऑल द नॉर्मल्स एंड कंपोनेंट्स लाइंग अराउंड. अच्छा, अब लेट्स डिस्कस द फाइनल पीस ऑफ द पजल, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सब बिल्ड करेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. सो लेट्स लुक ओवर द पावर फ्लो and pointing vector, I will call that. ठीक है, pointing vector. अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख लोगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब होती है, ट्रेवल करती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं. ठीक है, एट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, एंड वी विल लुक ओवर दैट इन द नेक्स्ट क्लासेस. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, when a wave is traveling, it is traveling in some direction. ठीक है, किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही होती है. हम इंटरेस्टेड होते हैं कि उस वेव की डायरेक्शन क्या होगी, हाउ वी कैन फिगर आउट द डायरेक्शन. ऑब्वियसली एक तो नजर मुझे आ रहा है, ठीक है, आई कैन से दैट, बट कैन वी डू सम mathematical way of finding the wave direction if electric field and magnetic fields are given. So fortunately ये एग्जिस्ट करता है वे. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं वोल्ट्स पर मीटर्स और एच के यूनिट्स हैं एम्पेयर्स पर मीटर. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या बन जाएगा? वोल्ट्स एम्पेयर्स पर मीटर स्क्वायर, इन अदर वर्ड्स वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. इसका मतलब अगर मैं ई और एच को मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल हैव ए सेंस ऑफ पावर, कि मुझे पता चल जाएगा मेरी पावर कितनी है एक वेव के अंदर. अब दो ऑप्शंस हैं, either I do a dot product or either do a cross product, because vectors हैं, vectors के अंदर यही दो products होती हैं हम कर सकते हैं. If I do the dot product, yes, I will find a magnitude of this thing, लेकिन the waves जो हैं वो travel कर रही होती हैं एक खास direction के अंदर. So dot product की इतनी कोई meaning नहीं होता. So most जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट हम करें, ई क्रॉस एच. वंस वी डू दैट वी कॉल इट इज अ स्पेशल नेम एस, और इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर. जिस ये बंदे का नाम था पॉइंटिंग, जिसने ये सबसे पहले चीज इंडिकेट की थी, पॉइंटिंग वेक्टर. सो पॉइंटिंग वेक्टर क्या करता है? इट टेल्स यू अबाउट द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वेव, या पावर फ्लो किस डायरेक्शन के अंदर जा रही है. एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच विद द यूनिट्स ऑफ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं. अगर मैं ये करूं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मजीद अच्छे तरीके से देख लेते हैं. अगर मैं ये करूं that I take the divergence of the sky, del dot E cross H. ठीक है, what does that mean? जब मैंने डाइवर्जेंस लिया तो इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा मुझे? what del dot S का क्या मतलब होगा? Yes, anybody wants to take? या आज सब सोए पड़े हुए हैं. Nobody wants to answer. Anybody wants to answer me what del dot S means? कोई नहीं बताएगा? Nobody? मैं फिर पॉइंट आउट करूं खुद ही नाम लेके? Okay, nobody wants to take. So del dot S basically जब आपने divergence of pointing vector देख रहे हो तो you would like, इसका मतलब basically ये कि you are trying to figure out
कि इस s का सोर्स क्या है, इसके अंदर जो टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं. दैट्स द डाइवर्जेंस ऑफ s मींस. अच्छा, आई एम गोना यूज एन आइडेंटिटी हेयर. Del dot a cross b is equal to b dot del cross a minus a dot del cross b. I'm going to use this identity. This is a vectorial identity to this right hand side. So once I do that, you can easily see del dot s becomes h dot del cross e minus e dot del cross h, right? ये सारे vectors हैं. I applied this identity on this and I get this one. अच्छा, अब I can see that del cross E is my Maxwell की equation है, ठीक है? और मैं कहता हूँ ये free space में है, so I'm assuming कि J और rho दोनों zero हैं. J and rho are both zero, ठीक है? So once I apply this Maxwell's equation minus H dot partial b over partial t हो जाएगा, ये मैक्सवेल की इक्वेशन है. माइनस नहीं सॉरी, j को नहीं मैं जीरो करता, मैं सिर्फ चार्ज को जीरो करूंगा. माइनस e डॉट माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच जो है वो किसके बराबर होगा, पार्शल डी ओवर पार्शल टी प्लस ई डॉट जे. इनफैक्ट इस assumption की भी जरूरत नहीं है, I'll take this assumption out. प्लस ई डॉट जे. अच्छा, अब sorry, actually this would become minus e dot j, ठीक है? So that is del dot s. So what happens next is this, that I can write minus del dot s, and this would become e dot j plus e dot partial d over partial t plus h dot partial b over partial t, ठीक है? अच्छा, so can you identify कि ये टर्म्स क्या हैं? कोई बताएगा? अच्छा, कोई मुझे बताएगा इस टर्म का यूनिट क्या है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल डॉट एस? एस का यूनिट वाट्स पर मीटर स्क्वायर है, तो डेल डॉट एस का क्या यूनिट होगा? सर वाट्स पर मीटर क्यूब. वाट्स पर मीटर क्यूब, ठीक है? यानी कि मैं ये क्या देख रहा हूं, पावर पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही है ना? ठीक है, आई एम लुकिंग एट पावर पर यूनिट वॉल्यूम. अगर ये वाट्स पर मीटर क्यूब है तो ये सब की सब वाट्स पर मीटर क्यूब है. सो ये सारी टर्म्स यही होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट दीज इक्वेशंस टेल मी. इसका मतलब ये सारी टर्म्स जो हैं ये किसी ना किसी फॉर्म के अंदर किसी पावर को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक हो गया? अच्छा, अब ये कोई मुझे बता सकता है कि ये किस किस्म की पावर है, ये किस किस्म की पावर है और ये किस किस्म की पावर है? एनीबडी कैन टेल मी? ई डॉट जे किस किस्म की पावर है? सो इफ यू, सर जी जी बोलो. पावर ड्यू टू करंट चार्ज डेंसिटी, पावर ड्यू टू करंट डेंसिटी. पावर ड्यू टू करंट डेंसिटी. और आपको ये पता है ये जे जो है ये क्या होता है, सिग्मा ई, राइट? तो ये बेसिकली ये वाली जो पावर है, दीज आर बेसिकली योर ओहमिक लॉसेस. कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी कंडक्टिव मीडियम के ऊपर जब ये गिरेगी तो उसके अंदर पावर लॉस होगा, और वो जो लॉस है वो ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, ओहमिक लॉसेस. अब कोई मुझे बताएगा कि ये वाली टर्म किस पावर को रिप्रेजेंट कर रही है? दिस पावर इज ड्यू टू द पावर stored in
electric field, and this power is power stored in magnetic field. अब मैं आपको थोड़ा सा अगर रिमाइंड करवाऊं, दिस इज सेम एज आर एल, नो दिस इज सेम एज आर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव लॉसेस, कि जब आपका वो जो सर्किट थ्योरी होती थी उसके अंदर जो भी पावर आर में जाती थी वो डिसिपेट हो जाती थी, कैपेसिटिव जो कैपेसिटर में जाती थी वो भी स्टोर होती थी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती थी, और जो इंडक्टर में जाती थी वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती थी या इंडक्टर के अंदर स्टोर होती थी. So these electromagnetic waves, they have the similar analogous things here, जहां पर आप ये इसको अब इस तरह सोच सकते हो कि अगर एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, एंड व्हाट हैपेंस देयर, क्योंकि आप ये देख सकते हो, व्हाट आई कैन डू, जब मैं इसकी पावर की बात करूंगा, आई कैन टेक दिस एज अ वॉल्यूम, सारी चीज को, ठीक है, तो ये सब पावर में आ जाएगा, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मैं जब डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊंगा, सो दिस बिकम्स एस डॉट टी एस. सो यू कैन थिंक लाइक दिस कि जो पावर है किसी भी एरिया के अंदर, दैट इज दिस पॉइंटिंग वेक्टर एस डॉट टी एस, और जो पावर जब ये अंदर गएगी, यू नो, इट्स गेटिंग इनसाइड द एरिया, सो दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव, ये यूटिलाइज होगी ओहमिक लॉसेस में किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, या इट वुड बी स्टोर्ड इन ई और एच मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है. सो मैं अगर इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं ताकि ये चीज पॉइंट बिल्कुल आपके दिमागों में बैठ जाए, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पॉइंट, दैट pointing vector through some closed surface is the sum of the power dissipated in the volume enclosed by the surface volume enclosed by the surface, and ठीक है, so basically that would be it, or few facts about the pointing vector, if you can write that. Basically the pointing vector, it gives, the pointing vector gives direction of propagation of an EM wave, and the pointing vector gives net flow of power out of a given volume through its surface. So that's so basically it's a very straightforward thing. ये इसमें कोई rocket science नहीं है. Pointing vector हमने कभी किसी wave के अंदर power निकालनी, we can simply do E cross H very straightforwardly, ठीक है. And let's look over its one of its example. A quickly example देख लेते हैं about this. I hope I am making sense today. I'm not feeling very well today.
but I think things should be making sense for you guys. ठीक है, कोई problem तो नहीं है? It's an easy thing. So example 5.7. So example 5.7 says that we have an antenna in free space. Antenna, let's say कि ये antenna है, इसका point है, in the free space, and it's radiating the waves. ठीक है? If this is the antenna, जैसे ये, let's say ये antenna, और यहाँ से waves are being radiated from its top, you can say that. And for this antenna, the electric field is given as E naught R sine theta and sine omega t minus r over u naught. It's in the spherical coordinate system, a theta, and h is e naught over r mu naught over epsilon naught, and sine theta sine omega t minus r over u naught a phi. So the question is, what is the Poynting vector and how much is the power leaving the antenna? ठीक है, it's very straightforward. Poynting vector क्या होगा? S is equal to E cross H. You can see this thing that वो जो थीटा वाली टर्म है उसको क्रॉस प्रोडक्ट में करूंगा फाई के साथ, तो क्या आ जाएगा? You can see कि R theta phi तो रेडियल डायरेक्शन में, which makes exactly sense कि अगर ये एंटेना इसके ऊपर सफेद है तो रेडियल डायरेक्शन के अंदर पावर इज गोइंग इन द रेडियल डायरेक्शन ऑल directions. So जब मैं ये निकाल लूंगा pointing vector, this becomes watts per meter square, इनको multiply करके. So in order to figure out the power, what I'm gonna do, I'm gonna take that area in the spherical coordinate systems and figure out the power in watts. Spherical coordinates क्या होंगे? आपका phi 2 pi में और आपकी cone 0 pi में, and you can have the power in watts. And you can take the average power by integrating over time. ठीक हो गया? So I'll leave this example here, and I think that should be it for today. Any question? I can do one more example actually. Let's do that. One more example. Yeah, let's leave it here. I'm not feeling very well to go over with this. ठीक, कोई सवाल किसी के पूछने हो? Yes. Any questions? So on Monday you will have your exam, which will cover everything from vector calculus to these Maxwell's equations जो हमने भी discuss किए हैं. और next week we will start looking over the waves and wave equations. So basically अब जितना आप लोगों ने देख लिया है, अब इसके बाद सारी चीजें extension है on the prior concepts. Any questions for today's class? अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल 5.8 को आप जरा गौर से देखिएगा. आई वुड से दैट एंड देखिएगा ये काउंटर इंट्यूटिव तो नहीं है आप लोगों के लिए. एग्जाम्पल 5.8 look over it and maybe come up with some explanation. Maybe in the next class I will spend 3-4 minutes over this intuition, but I would like you to look over it yourself first. ठीक है? So अगर कोई सवाल नहीं है तो I'm gonna stop recording, or if you have any other questions I will be with you for as long as you want. तो recording देख रहे अपना ख्याल रखें, and on Monday for the exam, and I will see you on Wednesday. Okay.